Good morning, students. Today we will learn about the other heavenly bodies which present in the sky. We have seen about the planets, star, constellations, pole star, and now today we will see about the asteroids, comets, meteoroids and meteors. So here we are starting with the asteroids. These are small bodies which revolve around the Sun in an orbit between Mars and Jupiter. Asteroids is said to be that parts of matter which could not take the shape of a planet due to some reason. Now, see what is asteroids? Asteroids means they are what? They are the small rocky object that made of rock and that revolve around the sun. Like the planets revolve around the sun, similarly asteroids also revolve around the sun. In space there are so many asteroids. They are irregular in shape. They are not having any defined shape. That's why they not like the planets because they are not having any defined shape, है ना. अब देखो एस्ट्रॉइड्स क्या है बताया मैंने आपको कि एस्ट्रॉइड्स जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, मतलब दे वेरी इन साइज, है ना. दे आर हैविंग स्मॉल एज वेल एज बिग ऑल्सो. एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटे भी होते हैं लाइक अ पेबल और बड़े भी होते हैं. ठीक है. ये एस्ट्रॉइड्स किससे बने होते हैं? रॉक. जैसे माउंटेन्स में रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एस्ट्रॉइड्स भी रॉक से बने होते हैं. ये एस्ट्रॉइड्स एज अ प्लानेट, जैसे प्लानेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, एस्ट्रॉइड्स भी दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक. दे रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट. जैसे प्लानेट्स क्या करते हैं? प्लानेट्स रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन. हर प्लानेट का एक ऑर्बिट होता है, एक पाथ होता है जिसमें वो क्या करता है? सन के चारों तरफ अपने ही ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है ना. सिमिलरली एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो हैविंग व्हाट? ऑर्बिट. इनका भी एक पाथ होता है, उस पाथ में ही ये सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. एंड दैट ऑर्बिट और पाथ, है ना, फाउंड इन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. और एस्ट्रॉइड्स का जो ऑर्बिट है, पाथ है, वो किसके बीच में होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में होता है. मतलब ये जो एस्ट्रॉइड्स है, मेन एस्ट्रॉइड्स जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में. एंड दैट इज़ कॉल्ड द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बोलते हैं. वो उसी में क्या करते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है. Asteroids are made up of rocks and some asteroids are made up of clay and some metals like nickel and iron. ठीक है. कुछ एस्ट्रॉइड्स तो रॉक पत्थर के ही होते हैं, लेकिन कुछ किससे बने होते हैं? क्ले से और मेटल. कौन से मेटल? निकिल एंड आयरन. ठीक है. नाउ सी स्मॉल वीडियो अबाउट द एस्ट्रॉइड्स. See students, these are asteroids. There are numerous of asteroids present in space. They are having different shape. Some are big and some are small. They revolve around the sun and they made up of rock. See here the different sizes of asteroids. Some are very big like this and some are very small like a pebble. Okay. And because of their irregular shape, they are not like the planet. They mainly revolve around the sun in their orbit, that is called asteroids belt, which present in between Mars and Jupiter. Next is comets. Comets are small heavenly bodies which revolve around the sun. We can see them only when they are very near to the sun. Its characteristic feature is small bright head with a long tail. The tail of the comet always points away from the sun. Usually the comet is seen after a fixed
interval of time. Halley's Comet is one such comet which appeared after 76 years. Last time it was seen in 1986. Now, see in the detail. Comets are cosmic snowball. जैसे आप snowball देखते हो बर्फ का है ना snowball है ना that made up of gases, rock and dust. Comet किससे बना होता है? Frozen gases, rock and dust. And comets as planet and asteroids they also revolve around the sun. Comet भी sun के चारों तरफ क्या करता है? Revolve करता है. ठीक है? फिर When a comet comes near the sun, जब comet क्या होता है? Sun के पास आता है near the sun, it heats up. वो क्या होता है? गर्म हो जाता है. And dust and gases start vaporizing. अब comets के अंदर snowball जैसे बर्फ होती है ना, अगर हम बर्फ को क्या करेंगे? अगर हम गर्म करते हैं बर्फ को हीट के पास लाते हैं ना, so they start vaporizing. उसमें से क्या होता है? बर्फ पिघलना, बर्फ स्टार्ट मेल्टिंग, बर्फ पिघलना शुरू होती है और उसमें से क्या निकलती है? गैस है ना, यू हैव सीन ना, उसमें से क्या निकलती है? गैस निकलना स्टार्ट होती है और वो बर्फ क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है. एग्जैक्टली द सेम when the comet comes near to the sun, it heats up and dust and gases start vaporizing and these vapors form the tail है ना. तो जब comets क्या होते हैं? सन के पास आते हैं, they start vaporizing. उसमें जो डस्ट और गैसेस हैं वो वेपराइज होना स्टार्ट होते हैं. जब स्टार्ट होते हैं तो उनकी एक टेल निकलना शुरू हो जाती है. ठीक है? एंड दैट स्ट्रेचेस अवे फ्रॉम द सन. और जो टेल होती है वो अवे किससे दूर जाती है? सन से. ठीक है? एंड मिलियंस ऑफ माइल्स, मतलब उनकी जो टेल होती है वो मतलब जब आपका जो कॉमेट्स होता है, जब कॉमेट्स क्या होता है? सन के पास आता है तो उसके अंदर ड्यू टू द हीट ऑफ सन कॉमेट्स, बिकॉज कॉमेट्स किससे बने? आपका फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से. ठीक है? एंड इट लाइक अ स्नोबॉल. तो जब कॉमेट सन के नियर आता है तो बिकॉज ऑफ सन हीट वो गर्म हो जाता है. उसमें से उसकी जो गैसेस और डस्ट होती है वो क्या होती है? वेपराइज होना स्टार्ट होती है. जब वेपराइज होना स्टार्ट होती है तो कॉमेट जो होता है उसके अंदर से एक टेल जैसे निकलना स्टार्ट होती है और ये जो टेल है वो इट गोज अवे फ्रॉम द सन. ये सन से बहुत दूर जाना स्टार्ट करती है. ठीक है? Now see students, this is what comet. Okay, in Hindi it is called Dhumketu. It made of frozen gases, dust and rock, and it revolve around the sun. Okay, when comet comes near the sun, heat ups and the gases start vaporizing and they form a tail which goes away from the sun. See how it heats up and vaporized. And about the meteors and meteoroids. Sometimes during dark night you may see bright lines of the light in the sky. है ना, कभी कभी रात में आपको जो स्काई है उसमें आपको एक ब्राइट लाइन दिखती है. Some call these as shooting star or falling star. है ना, कभी कभी sometime at night we have seen ना shooting or falling star, मतलब टूटता हुआ तारा. आपने भी देखा होगा कि तारा को टूटते हुए नीचे की तरफ आ रहा है. मूवीज में भी इसको दिखाया जाता है ना, तारा टूट रहा है नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है? सो बट दे आर नॉट स्टार, दे आर मीटियर्स. है ना, तो जो हम बोलते हैं टूटता तारा जो हमको दिखता है, they exactly they are not star, they are what? They are meteors. Meteors are small heavenly bodies that revolve around the sun. When these bodies enter the earth atmosphere at very high speed, they burn up due to friction. ठीक है? Like देखो meteor, ये जो meteors होते हैं they are also a heavenly body which present in the space or sky. है ना, तो जब ये heavenly bodies क्या होती है at the very 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 speed, बहुत speed में when they comes into the earth atmosphere, मतलब कोई भी चीज अगर ऊपर से बहुत स्पीड में नीचे की तरफ आएगी एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? कोई चीज जब नीचे की तरफ आती है तो एयर जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है? अब फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? उसमें क्या होती है? स्पीड अगर बहुत ज्यादा है
और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होता है, बर्न अप, जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड सम मीटियर्स डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली, है ना। तो जब मीटियर्स जो बहुत मतलब वो स्पेस से आ रहा है तो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत स्पीड में जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो क्या होता है, बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, वो स्पेस में कम्प्लीटली क्या होते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। एंड सम आर नॉट, है ना, कुछ बर्न अप हो जाते हैं कम्प्लीटली और कुछ क्या होते हैं, बर्न अप नहीं होते हैं। सो इन दैट सम पार्ट ऑफ इट्स फॉल ऑन द अर्थ विदाउट बर्निंग। मतलब देखो ये जो हेवनली बॉडीज है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसमें क्या होती है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स दे गेट बर्न अप एंड some part of its burns completely and the left part which is not burned completely they fall into the earth surface, है ना। तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है जो अनबर्न होता है, नहीं जलता है, वो क्या होता है, अर्थ में आके गिरता है। These unburned bodies are called meteoroids। ये जो अनबर्न बॉडीज है उसको क्या बोलते हैं, meteoroids, ठीक है। अब देखो और क्लियर करते हैं, what are the meteoroids? Meteoroids are objects in space that range in size from dust grain to small asteroids। अब meteoroids क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पेस में, और इनकी साइज क्या होती है, ग्रेन मतलब छोटे दाने से लेकर स्मॉल एस्ट्रॉइड्स तक होती है, ठीक है। फिर when meteoroids enter Earth atmosphere or that of another planet like the Mars at very high speed, they get burn up. The fireball और शूटिंग स्टार आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स, ठीक है। तो ये जो हेवनली बॉडीज हैं जो स्पेस से आ रही हैं बहुत हाई स्पीड में, बहुत स्पीड में, जब ये अर्थ के सरफेस में एंटर करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और जब हम उनको बर्न होता हुआ देखते हैं दैट इज कॉल्ड मीटेरॉइड्स, उसी को बोलते हैं मीटेरॉइड्स या फिर शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, ठीक है। तो इसका अगर ये स्पेस में कम्प्लीटली बर्न अप हो गया है और तो ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बर्न अप नहीं होता, कुछ पार्ट छूट जाता है एंड दैट फॉल इनटू द अर्थ सरफेस, और वो कहाँ पे आता है, अर्थ सरफेस में आके गिरता है, दैट इज कॉल्ड मीटेरॉइड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड्स, ठीक है। सो अगेन आई एम क्लियरिंग यू, meteors is what, the heavenly bodies that fall into the earth's surface and they start burn up. Some are complete start burn up and that is called what, meteoroids, okay. And when some part of this without burning fall into the earth atmosphere that is called meteoroids, ठीक है। तो जो स्पेस में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, दैट इज कॉल्ड मीटियर्स, और उसका जो अनबर्न पार्ट है जो जला नहीं है और वो अर्थ में आके गिरता है, अर्थ सरफेस में आके गिरता है, दैट इज कॉल्ड मीटेरॉइड्स, ओके। So I think this is clear to you. So now again see some small video of this, okay, and question answer next day I will give you. See students, meteors are also made up of rock. They very high speed they fall into the earth's surface and due to friction they start burning and it is called shooting or falling star. When some part of meteors do not burn up, the unburned part of this fall into the earth atmosphere and that is called meteoroids, okay. That is called what, meteoroids. The leftover part which fall on earth's surface is called meteoroids.